Hello, dear participants. Very good morning to all of you. Again, I am here in front of you with our module Introduction to Solar System and Solar Photovoltaics Modeling using PVC software and Simulink. This is day number two. In day number one, we have explained about our module. We have just given the introduction about the module, what we will do in the module, how it will be evaluated, and what will be the parameters for the evaluation. All these things were explained by me from my side. And in the second class, Professor Aparajita madam and Sweta madam explained about the part which she will cover in the next week. So today is a class number two, day number two. In the day number two, in second class, we will cover the Sun Earth transition. Sun Earth transition, as I have mentioned here, this is the Sun Earth transition part. What is the Sun Earth transition means? In the today's class, I will cover the part that how much energy the sun is having. Sun के पास कितनी एनर्जी है, and out of total energy which is the sun is having, how much energy it provide to the earth. सन के पास जितनी एनर्जी है उसमें कितना पार्ट वो अर्थ को प्रोवाइड करता है, और जितना वो अर्थ को प्रोवाइड करता है एनर्जी, उसका कितना पार्ट हम यूज़ करते हैं और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं और किस तरह से फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आज अपनी क्लास में देखेंगे और समझेंगे। ऑल्दो मैं अपनी क्लास को डायरेक्टली टेक्नोलॉजी पर भी ला सकता था, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकता था इस पार्ट पर कि हम लोगों को डायरेक्टली हम सोलर फोटोवोल्टाइक्स को लेकर के आ जाएँ या सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी को लेकर के आते और उसको डिस्कस करते। लेकिन मुझे लगा कि क्लास को थोड़ा-सा बेसिक पे लेकर के चलें, क्योंकि हम सन की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें सूर्य देवता को प्रणाम करना भी बनता है। इट मीन्स कि जो सन है, सन की जो प्रोड्यूस एनर्जी है, वो कितनी है और वो किस तरह से वो अर्थ तक पहुँचती है, कितनी अर्थ एनर्जी अर्थ तक पहुँचती है, क्या उसके बेसिक कैलकुलेशंस हैं और उस टोटल एनर्जी का कितना पार्ट हम यूज़ करते हैं, ये थोड़ी-सी बेसिक नॉलेज भी हमको होनी चाहिए। तो मैंने आज लेक्चर जो प्रिपेयर किया है वो बेसिक के बारे पे प्रिपेयर किया है, एंड द टॉपिक एंड द title of the lecture is the Sun Earth Transition. It means the Sun Earth energy transactions. So, before starting today's class, I would like to discuss with you the next 5-day plan. So this is very essential that the what I will cover in the coming week, in coming classes, it should be very much clear from my part, and as well as it should be in the knowledge of you. So I have made this lecture plan, day wise plan, और क्या मुझे टॉपिक्स कवर करने हैं फॉर नेक्स्ट 5 days अप टू द सैटरडे. I will take your classes, and the basic part will be covered in these next 5 days. And Sunday there will not be any class on the Sunday, and from Monday onwards the four classes will be taken by the Aparajita Kumari madam. She will take the PVCS part, and after that Saturday Sunday, and in next week Saturday Sunday there will not be any class, and in the last third week and last week that few classes will be taken by the Sweta Kumari madam, and there will be some evaluation part which I have already discussed in the previous class, in yesterday class. So I will tell you about only my part. तो आज ट्यूसडे है, इन प्रेजेंट क्लास ट्यूसडे क्लास आज हम क्या कवर करेंगे और संडे तक हमें किस तरह से इसको प्रोसीड करना है, वो सारा प्लान मैंने लेकर के आया, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना हो इस पार्ट पे कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर नेक्स्ट क्लास में सर क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, और आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और ऐसे ही आर्बिट्रेरी हम कोई भी टॉपिक लेकर के आएँ और एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक प्रोसीजर के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, और जिससे आपको पता रहे और हमको भी पता रहेगा, मुझे भी मालूम रहेगा कि हाँ नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट है, ये नीड है, ये पार्ट डिस्कस करना है। तो टुडे इज द ट्यूसडे 12 ऑफ मई 2020. टुडे वी विल कवर द एनर्जी सिनेरियो, जैसे मैंने बोला कि सन अर्थ एनर्जी ट्रांजिशंस के पार्ट को हम कवर करेंगे आज, कितनी एनर्जी सन के पास है, कितनी अर्थ को मिलती है और किस तरह से मिलती है। तो टोटल सोलर एनर्जी सिनेरियो वी विल डिस्कस इन टुडेज क्लास, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टुडेज क्लासेस आई विल गिव यू वन असाइनमेंट टू यू बेस्ड ऑन द इंडियन एनर्जी सिनेरियो.
बहुत ही सिंपल सा असाइनमेंट है, कोई भी इसमें परेशान होने की बात नहीं है। असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है और मूडल के थ्रू सबमिट करना है। बहुत इंटरेक्टिव असाइनमेंट होगा। इन टुमारो क्लास ऑन वेंसडे वी विल कवर द लोड कैलकुलेशन एंड सोलर पीवी बेसिक। इट मीन्स कि जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल वाली जो क्लास होगी, उसमें हम पहले सीखेंगे कि लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमारे घर में जितना भी लोड लगा हुआ है, लाइट्स हैं, फैंस हैं, और एलईडी है, टीवी है, सब चीज़ें जितने भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनके अगर लोड को कैलकुलेट करते हैं, टोटल लोड की बात करते हैं, जो वॉट्स में आएगा या किलोवाट्स में आएगा, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। और इसको सीखना ज़रूरी इसलिए है, जिससे कि हम फर्दर ये कैलकुलेट कर पाएँ कि इस लोड की कंडीशन को, इस लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें जो मॉड्यूल सिलेक्ट करना है मार्केट से, सोलर का जो मॉड्यूल खरीद के लेकर के आना है, वो मॉड्यूल जो होगा वो कितने वॉट का होना चाहिए, कितने रेटिंग का होना चाहिए और कितने नंबर्स में होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे हम जाएँगे सोलर के, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे लोड कैलकुलेशन, जिससे कि हमें हमेशा दिमाग में एक प्रोजेक्ट रहे कि हमें अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी, जो सोलर के बारे में पढ़ रहे हैं, सोलर मॉड्यूल के बेसिक पढ़ रहे हैं, तो मॉड्यूल अगर हमें किसी प्लांट में या किसी घर में या कहीं पे रूफ टॉप पे लगाना है, तो उसके लिए कितनी रेटिंग रिक्वायर्ड होगी। तो पहले लोड कैलकुलेशन और उसके बाद सोलर फोटोवोल्टाइक का बेसिक। तो सोलर फोटोवोल्टाइक बेसिक मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया था कल कि हम सोलर फोटोवोल्टाइक बेसिक में हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सोलर सेल वाले पार्ट से हम देखेंगे बेसिक से, उसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रह जाए। लेकिन जो बेसिक पार्ट है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है उसको कवर करें, किस तरह सोलर सेल वर्क करती है उसको देखेंगे, और किस तरह से सिलेक्शन ऑफ सोलर सेल किया जाता है वो पार्ट हम कवर करेंगे कल की क्लास में। और बेस्ड ऑन दिस आई विल गिव यू ए वन एक्सरसाइज एट द लोड कैलकुलेशन ऑफ योर होम। अब कल की क्लास के बाद आपको ये जो भी आप सीखेंगे लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसके उसके बाद आपको एक छोटी-सी एक्सरसाइज करनी है कि आपके घर में जितना भी लोड लगा हुआ है, उस लोड को आपको नोट डाउन करना होगा। मैं एक फॉर्मेट प्रोवाइड करूँगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा कि टोटल कनेक्टेड लोड आपके घर में कितना है, कितना डे टाइम में यूज़ होता है, कितना नाइट टाइम में यूज़ होता है। ये सारा कैलकुलेशन आपको करना होगा। And then Thursday, day after tomorrow on Thursday, the 14th May 2020, what we will do, we will cover the design calculation of the rooftop solar plant to meet the domestic energy requirement. अब इसके बाद हमने यहाँ पे जब लोड कैलकुलेशन कर लिया, तो लोड कैलकुलेशन के बाद हमने सोलर का बेसिक पढ़ लिया कल। तो परसों जो क्लास मैं लूँगा उसमें आपको सोलर प्लांट के पूरे डिटेल्स बताऊँगा कि सोलर पैनल कैसे होते हैं, सोलर पैनल का एंगल, टिल्ट एंगल कितना रखना चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम एनर्जी को गेन कर पाएँ। उसमें सोलर सेल किस तरह से लगाए जाते हैं, क्या उसकी साइजिंग होनी चाहिए, क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, कब पैरेलल कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, उसके कितना आउटपुट आएगा, और सोलर का जो आउटपुट आएगा वो डायरेक्टली हम अपने घर में सप्लाई दे सकते हैं या बीच में सोलर इन्वर्टर जैसी एक डिवाइस यूज़ की जाती है, तो क्यों यूज़ की जाती है। मतलब पूरा एक सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, रूफ टॉप फोटोवोल्टेइक सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, उसकी डिज़ाइनिंग पार्ट को हम पूरा कवर करेंगे। और साथ में मैं आपको ये बताऊँगा एक कंडीशन लेते हुए कि हम किसी एक कंडीशन को, कि हम मान लीजिए एक फैक्ट्री के लिए हम डिज़ाइन करना चाहते हैं 100 किलोवाट का, उसको लेकर के मैं पूरा डिटेल में कवर करूँगा थर्सडे को। और उसी के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी होगी थर्सडे में कि आपने एक सोलर सिस्टम अपने घर के कनेक्टेड लोड के लिए डिज़ाइन करना है, तो वो कितना होना चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होगी। तो पहले हमने लोड कैलकुलेट किया वेडनेसडे को, घर का लोड, और थर्सडे वाली क्लास में हमने उस लोड के लिए कितना सोलर पैनल चाहिए वो कैलकुलेट किया। तो एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी होगा कि कितना हमारा सोलर सिस्टम कितने किस साइज़ के सोलर सिस्टम हमें चाहिए। देन फ्राइडे वाली क्लास में हम करेंगे ऑनलाइन सोलर प्लांट विज़िट। अब विज़िट हम नहीं कर सकते, तो हमने ऑनलाइन विज़िट की कुछ तैयारी करी हुई है। जो बड़े-बड़े सोलर प्लांट लगते हैं ग्रिड कनेक्टेड, उसकी विज़िट होगी, कम से कम आधे घंटे की एक क्लिप मैं आपको दिखाऊँगा। आप उसको देखेंगे, समझेंगे, आप फ़ील करेंगे कि सोलर कैसे वर्क करता है, सोलर प्लांट कैसे लगाए जाते हैं, इंजीनियर्स कैसे वर्क करते हैं। और इसके साथ में फ्राइडे में मैं आपको एक सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का डिमॉन्स्ट्रेशन और वर्किंग दूँगा। और ये डिमॉन्स्ट्रेशन वर्किंग के लिए मैंने बहुत तैयारी करी है, आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। एक सोलर से वाटर हीटिंग सिस्टम का मैं फुली अपना रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। किस तरह से मटेरियल पहले किस स्टेप में वो बनाए जाते हैं, और मैं उसका पूरा डेमो आपके साथ शेयर करूँगा। और डेफ़िनेटली इस पार्ट पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और आप इस सिस्टम को इस तरह से लर्न कर पाएँगे कि आप कभी एक सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम को अपने घर पे लगा सकते हैं। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको अगर अपने घर के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना है, तो आप उसको डिज़ाइन कर पाएँ, उसको लगा पाएँ। अगर आपको अपने घर पे के रूफ टॉप पे अगर आपको पैनल्स लगाने हैं, तो उस पैनल्स के लिए क्या कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है, आप उन
कैलकुलेशन को कर पाएँ और उन पैनल को ला के लगा सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट होगा। देन इसी के बेसिस पे एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा कि आपको अपने घर में अगर सोलर वाटर हीटर लगाना है तो उसके लिए उसके बेसिस पे एक ऐसा सिंपल सा असाइनमेंट या एक्सरसाइज आपको दी जाएगी जो आप परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली यू विल एन्जॉय द पार्ट, नो डाउट। एंड ऑन सैटरडे, इन द सैटरडे क्लास व्हाट विल हैपन, सैटरडे क्लास में आपको कुछ पीपीटी बनाना होगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ अपने कुछ आइडिया, कुछ पीपीटी या कुछ चार्ट या जो कुछ भी है आप जो करना चाहते हैं या जो आपने अपने घर के लिए कैलकुलेशंस किया हुआ है उसको आप जो मैंने असाइनमेंट दिया उनको आप एक्सप्लेन करेंगे और उसको एक्सप्लेनेशन के पार्ट को मैं सुनूंगा, उस पर डिस्कशन करेंगे और ये हेल्दी होगा, मैं परेशान होने की बात नहीं होगी। और संडे को चूँकि सैटरडे तक मेरी क्लासेस ओवर हो जाएंगी तो संडे वाली क्लास में कोई क्लास नहीं होगी और एक छोटी सी क्विज, छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो हमारे होंगे वो संडे की क्लास में हम लेंगे, उसको आप परफॉर्म करेंगे और मंडे ऑनवर्ड्स अपराजिता मैडम क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगी। तो दिस इज़ द नेक्स्ट 5 डे लेक्चर प्लान व्हिच विल बी कवर्ड बाय मी सौरभ कुमार राजपूत एंड डेफिनेटली वी विल एन्जॉय। नाउ बिफोर स्टार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर मैंने थोड़ा सा आपको आपके साथ डिस्कस करने के लिए रखा है कि ये पीपीटी मैंने बनाई बनाई है कि किस तरह से एनर्जी का यूज़ हम लोग आज के टाइम पे कर रहे हैं। अगर हम एनर्जी के यूज़ की बात करते हैं, अब आराम से सुनिए और एक कहानी जैसे समझिए इसको। अगर हम एनर्जी के यूज़ की बात करते हैं तो एनर्जी हम जहाँ कहीं भी कदम रखते हैं हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हम घर में हैं, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम घर से बाहर जाते हैं, हम किसी व्हीकल को यूज़ करते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम उस व्हीकल से जहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद अगर हम क्लासरूम में बैठे तो हमने फ़ैन ऑन किया, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। हमने पीपीटी के लिए प्रोजेक्टर ऑन किया, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। मतलब ई एट ईच एंड एवरी स्टेप वी नीड द एनर्जी, वी नीड द इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ एनर्जी एंड some other form of energy. We every time need the energy टू प्रोसीड आवर लाइफ। तो एक थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे स्केच बनाया है आपके लिए। तो एनर्जी के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि ये तो एक टिपिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम देखते हैं, यूज़ करते हैं। और अगर मैं और भी थोड़ा सा इसमें कुछ अपने पॉइंट्स ऐड करूँ तो यदि मान लीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो क्लास में अगर हम एनर्जी गैजेट्स की बात करें कि क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स के पास मिनिमम कितने एनर्जी गैजेट्स होंगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि आज के टाइम पे 100 स्टूडेंट्स के पास 100 मोबाइल सेट्स तो होंगे। पोर्टेबल एनर्जी इक्विपमेंट्स की बात कर रहा हूँ, पोर्टेबल एनर्जी गैजेट्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उनके पास कम से कम 100 लोगों के पास 100 मोबाइल फ़ोन तो होंगे और हर एक के पास एक वॉच होगी। और ये जो बेसिक नीड का पार्ट है। तो अगर हम इन 2 चीज़ों की बात करें तो हम देखें कि अगर हम अपार्ट फ्रॉम द फैन, लाइट, प्रोजेक्टर एंड ऑल दीज़ थिंग्स जो हमने क्लासरूम में लगा रखा है, हम इसके अलावा भी अपने साथ भी हम एनर्जी इक्विपमेंट्स को लेके चल रहे हैं जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो भी एनर्जी इक्विपमेंट अगर मिनिमम की हम बात करें तो हमें अगर 100 लोग बैठे हैं, द नंबर ऑफ पर्सन्स, द एनर्जी इक्विपमेंट्स आर डबल देन द नंबर ऑफ पर्सन्स। If the total number of students in the class is 100, then that 100 students are having the 200 number of portable energy equipments, the equipment which need the energy। इट मीन्स कि एनर्जी को हम अपने साथ में लेके चल रहे हैं, हम अपने साथ बल्कि अपने से डबल इक्विपमेंट्स को लेके चल रहे हैं जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। और एनर्जी की जो इंक्रीजिंग डिमांड है, इस इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करने के लिए हमें एनर्जी को जनरेट करने की ज़रूरत है। उसी के पार्ट पे यहाँ पे छोटा सा जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया है, तो कह रहा है कि ये ऑब्वियसली ही इज़ ए फादर एंड ये डॉटर जो अपने बच्ची को स्कूल लेकर के जा रहे हैं और ये हाथ छोड़ के चला रहे हैं स्कूटर, ये तो बहुत ही गलत है, वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़नी सा है, एक मैसेज भी है कि हम प्रेजेंट टाइम में हम केयरलेस हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये क्योंकि एनर्जी जिस स्कूटर में बैठ के जा रहे हैं उस स्कूटर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये कुछ ऑफिस में कुछ बात कर रहे हैं, हेलो नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, योर स्कूटर इज़ रनिंग फाइन, और जिससे भी बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो उसके लिए जो इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं, जो उन्होंने कान में लगाया हुआ है, दैट इक्विपमेंट इज़ ए मोबाइल फ़ोन, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। देन इनके यहाँ पर इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, एक मोबाइल फ़ोन यूज़ किया हुआ है पैरेलल में, एक लीड लगाया हुआ है, ईयरफ़ोन है, जिससे ये गाने सुन रहे थे। यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, गाने सुन रहे हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये बच्ची बेचारी स्कूल जा रही है तो काम करते हुए स्कूल जा रही है अपने लैपटॉप पे।
कुछ कर रही है, तो यहाँ पर इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वायरलेस डाउनलोडेड होमवर्क यहाँ पे चल रहा है, क्विक एंड फास्ट काम हो रहा है, कट एंड पेस्ट करके असाइनमेंट बनाए जा रहे हैं, होमवर्क डन हुआ, कंप्लीट हो गया। सारी फीलिंग दिमाग में चल रही है, और इन सारी फीलिंग्स के पीछे, इन सारे काम के पीछे क्या है? एनर्जी का एनर्जी है। तो एनर्जी इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एनर्जी एट ईच एंड एवरी स्टेप वी नीड द एनर्जी, एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री वी नीड द एनर्जी। एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। This is the very basic of today's life. Then, uh, today's class objective is to calculate the energy received by the earth from the sun. जैसे मैंने पहले कहा कि कितनी एनर्जी हम रिसीव करते हैं, अर्थ जो है वो सन से कितना एनर्जी रिसीव करती है, इसको हम कवर करेंगे। And to compare the energy received by the earth from the sun with the energy used by the mankind. इट मीन्स कि अब हमें 3 पार्ट डिवाइड किया, कितना सन के पास एनर्जी है, कितना उसने अर्थ को प्रोवाइड किया, और कितना मैनकाइंड को उसकी ज़रूरत है, तीनों पार्ट में। इसका ब्रीफ मैंने भी कवर किया। Hello friends, and welcome to a new Happy Learning video. Today we're going to learn about the most important star in the universe. Today we're going to study the sun. The sun is a star, an enormous sphere of extremely hot gas which is continuously shining and spinning around. It seems much bigger and brighter than any other star, but that is only because our planet is close to it, more so than to any other star. The sun is in the center of our system, and that's why we call it the solar system. And all the planets in it revolve around the sun. It has been shining in space for more than 4.5 billion years. Yup, I said B for billion, and scientists claim it will continue to do so for another 5 billion years. It's incredible! The sun is composed of gas. The majority of this gas is hydrogen and helium, though there is also some carbon, nitrogen, and oxygen. It shines so brightly and transmits so much energy because in its interior they are atomic reactions which turn the hydrogen into helium. To give you an idea, the surface temperature on the sun is 5,800 degrees Celsius. In only 1 second, more energy is released from the sun than that which has been consumed by all humanity so far, just in 1 second. Compared to the Earth, the sun is enormous. 1,300,000 planets the size of our Earth can fit inside the sun. It is also very far from our planet. Do you know how long it would take us to get to the sun? Well, considering that the sun is 150 million kilometers away, if we would travel from the Earth to the sun by car at a speed of 100 kilometers an hour, we would take 170 years to get there. Though the light that the sun emits doesn't take that long to get to the Earth. It takes only 8 minutes for the light to travel from the moment it leaves the sun till it reaches our planet. That's 300,000 kilometers per second. It's absolutely mind-blowing. It can circle the world 7 times in 1 second. There is most definitely nothing faster than light. So now we have learnt a little more about the sun, our star, and about light. I hope you found it all very interesting. Goodbye, friends. Oh, and don't forget to subscribe to Happy Learning TV. Now
एनर्जी की जो सबसे पहले हम सोलर की बात कर रहे हैं, सोलर पे हम क्यों मूव कर रहे हैं, सोलर टेक्नोलॉजी का क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमने कहा कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और हमारे जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये कहीं न कहीं कभी न कभी ख़त्म होने वाले हैं, जिसके डेटा आते रहते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम में 30 इयर्स के बाद कोल नहीं होगा। फिर कहीं से हमें कोई दूसरी कोल की खदान मिल जाती है, हमें लगता है कि हाँ, चलो इससे काम चलेगा, 30-35 ईयर्स के बाद कोल अब नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं, कभी न कभी तो ख़त्म होंगे ये। ऑयल हैं, ऑयल के रिसोर्सेज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, तेल के कुएँ हैं बड़े-बड़े, लेकिन तेल को हम कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं। उनको प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कम है और उनकी नीड ज़्यादा है। तो ये सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज़ हैं, जिनकी एक टाइम लिमिट है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ख़त्म हो जाएँगे। और अगर हमें डेवलप करना है, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज़ कम है, तो इस जो बीच में गैप आ रहा है, उस गैप को हम कैसे फ़िल करेंगे? उस गैप को फ़िल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज़, मतलब वो रिसोर्सेज़ एनर्जी के जो एबंडेंटली अवेलेबल हैं नेचर में, फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर, एयर, बायोमास एक्सेट्रा। तो हम और जो सोलर की अगर हम बात करें, सोलर हैज़ ए बिग बिग पोटेंशियल वेरी स्पेसिफिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। हमारे यहाँ तो सोलर की बहुत ज़्यादा बहुतायत है, और सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम बात करते हैं सन से। फर्स्ट पॉइंट, सरफेस ऑफ द सन इज़ 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। सन की अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्लो करके पढ़ाऊँगा, जिससे आपको कुछ डेटा भी दिमाग में रहे। सन के सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सन के कोर का जो टेम्परेचर है वो सेवरल मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड है। मिलियन मीन्स 10⁶ तो सन के कोर का टेम्परेचर बहुत 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 ही ज़्यादा हाई है। लेकिन हम जब बात करते हैं सन के सरफेस का, तो वो टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ये कंपैरेटिवली काफ़ी लो है, और ये जो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हम कई बार इस लेवल तक के टेम्परेचर को हम यूज़ करते भी हैं फर्नेस वगैरह में। तो ये इतना हाई नहीं है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। इस लेवल के टेम्परेचर को हमें पता है कैसे डील करना है, और ये टेम्परेचर सन के अर्थ पर है, सन के सरफेस पर है। नाउ सन गिव्स द 234 sorry 2 384 सन गिव्स द 384 384 योटा वॉट्स ऑफ एनर्जी। योटा मीन्स 10⁻⁴। अब हमने जो यहाँ पर जो सन का टेम्परेचर था, जो सन के सरफेस का जो टेम्परेचर था, उसको हमने कन्वर्जन फार्मूले को यूज़ करके उसको हमने वॉट में कन्वर्ट किया। जो कैलकुलेशन है, उस पार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसके डीप में नहीं जाना है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के डीप में जाना है, लेकिन कुछ फिगर्स पता होना चाहिए, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सन के का जो टेम्परेचर है, उसको जब हमने वॉट एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो कहता है कि सन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो 384 योटा वॉट एनर्जी प्रोवाइड करता है। 384 योटा वॉट मीन्स 384 इंटू 10⁻⁴ वॉट ऑफ एनर्जी हमें सन ने प्रोवाइड की, जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10⁻26 वॉट्स ऑफ एनर्जी विच द सन इज प्रोवाइडिंग टू अस। नाउ अब ये देखिए, ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 384 योटा वॉट एनर्जी सन के पास अवेलेबल है। पावर ऑफ द सन इज़ 384 योटा वॉट, जिसको हमने लास्ट स्लाइड में देखा। सन की जो रेडियस है वो कितना है, 0.7 मिलियन किलोमीटर। 0.7 मिलियन किलोमीटर मीन्स 0.7 10⁻⁶ किलोमीटर। इट मीन्स कि 7 लाख किलोमीटर, 7 लाख किलोमीटर सन का रेडियस है। और अगर हम अर्थ के रेडियस को देखें, तो अर्थ का रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर सन का रेडियस है। अगर हम अर्थ और सन के रेडियस को कंपेयर करें, सन और अर्थ के साइज को आपस में कंपेयर करें, और एक रफ फिगर में अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूँ कि ये जो 6300 है, ये 7000 किलोमीटर का अर्थ का रेडियस है। दिस रेडियस इज कंसिडर्ड एज 7000, and the radius of sun is 0.7 million, which means the 7 lakh.
तो अगर कंपैरिजन करें तो 7 लाख और 7,000 के जब आप कंपेयर करेंगे तो इट मीन्स कि सन का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 100 टाइम्स बड़ा है। 100 टाइम्स है, इट मीन्स कि सन का साइज अर्थ के साइज का 100 गुना बड़ा साइज है सन का। इसीलिए सन एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहा है अर्थ को एज वेल एज अदर प्लैनेट्स को, जो कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल हैं। उसके बाद अब ये तो हो गई रेडियस की बात, जो सन की अपनी एक रेडियस, अर्थ की अपनी रेडियस। इसके बाद जो अर्थ है, जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है ब्लू कलर से, ये अर्थ है। अर्थ एक ऑर्बिट में, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन, ब्लू डॉटेड लाइन से कवर किया गया है सन के चारों ओर। अर्थ जो है वो इस ऑर्बिट में सन के चारों ओर रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, परिक्रमा को पूरी करता रहता है, सब हम लोग सब जानते हैं। तो अब बात आती है डिस्टेंस की। सन की अर्थ के साथ डिस्टेंस क्या है? सन के सेंटर को यहाँ से पकड़ा और अर्थ के सेंटर को हमने यहाँ पकड़ा। अर्थ का सेंटर बोल लें या फिर ऑर्बिट का जो लाइन है वो उसको पकड़ें, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो मेज़र किया गया वैज्ञानिकों ने जिसको जिसको मेज़र किया, तो कहता है जो ऑर्बिट की रेडियस निकल कर के आती है वो आती है 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर मीन्स 149 10⁻⁶ किलोमीटर। अर्थ जो करीब-करीब 6,300 किलोमीटर का रेडियस का अर्थ, सन जो 7 लाख किलोमीटर की रेडियस का एक सन, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 149 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। और अगर हम कंपेयर करें इस दो चीज़ों को, कि हमारे सन जो रेडियस है ऑर्बिट का, और जो सन का, हमारा जो सन की जो रेडियस है, इसको कंपेयर करें तो कहता है कि सन के अगर डिवाइड करके देखें तो आता है 200 टाइम्स। इट मीन्स कि जो ऑर्बिट का जो रेडियस है, जो कंप्लीट ऑर्बिट बन करके आ रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से, वो ऑर्बिट जो है वो 200 टाइम्स बड़ा है सन के रेडियस से। तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर देखे। पहला, सन का साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन में 100 गुना बड़ा है, और सन की दूरी अर्थ से कितनी है? सन के खुद के साइज से, खुद के रेडियस से 200 गुना जो है वो दूरी है सन और अर्थ के बीच में। तो दीज आर द वेरी बेसिक पैरामीटर्स जो हमें थोड़े से पता होने चाहिए, तो वहाँ पर है। एंड द बेसिक इज़ द, जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी बन के आ रही है, 384 योटा वाट एनर्जी हमारे सन को प्रोवाइड कर रहा है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा, सन जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो हर हर डायरेक्शन में है। सन ने यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करी, इस डायरेक्शन एनर्जी प्रोवाइड करी, अर्थ के पास कुछ एनर्जी आई, कुछ एनर्जी सन से निकल करके जाएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सन इज़ प्रोवाइडिंग इट्स एनर्जी इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। किसी के साथ कोई बायसिंग नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। सन ने एनर्जी बनाई और हर डायरेक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट करी। यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, लेकिन अभी 3 डायमेंशन में दिखा नहीं सकता, लेकिन आप इस बात को इमेजिन करिए, सन की जो एनर्जी होगी वो एक स्फेरिकल शेप में होगी। मतलब सन ने जो सेंटर में जो सन है, वो अपने चारों ओर एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स कि वो एक उसके आसपास जो स्फेरिकल होगा, उस स्फीयर में एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा होगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल को लेके मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आप एक रूम में के सेंटर में एक बल्ब को ऑन करके छोड़ दें, तो वो बल्ब जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो सेंटर में होने की वजह से वो पूरे रूम में लाइट प्रोवाइड करेगा। अब जितना आप उस बल्ब के पास जाएँगे, उतना आपको इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा फ़ील होगी, और जितना आप दूर जाएँगे उतनी इंटेंसिटी कम फ़ील होगी। अगर आप एक एडिशन बल्ब लें, जो पहले यूज़ किए जाते थे घरों में, अब यूज़ नहीं किए जाते हैं, येलो वाली जो येलो लाइट देते हैं, और उसका एक बड़ा बल्ब 500 वाट का बल्ब आप लेके सेंटर में रख दें, तो लाइट तो पूरे रूम में देगा, लेकिन आप बल्ब के पास खड़े होंगे तो आपको हीट फ़ील होगा, और जितना उससे दूर जाएँगे उतना आपको हीट क्या होगा? कम होगा। डेफ़िनेटली ये तो एक बहुत ऑब्वियस सा फिनोमेना है कि हीट हीट जो है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ-साथ हीट जो है वो रिड्यूस कर जाती है। लेकिन वो जो सन है, वो जो बल्ब है, जो हमने एग्ज़ाम्पल के लिए बल्ब लिया, या रियल में हम सन की बात करें, तो वो पूरे के पूरे रूम में या पूरे-पूरे ब्रह्मांड में हर डायरेक्शन में एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा होगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट ये करना है कि वो सन अर्थ को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर जो अर्थ है, ये सन से जो एनर्जी निकली, जो हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसका कितना पार्ट इस अर्थ ने रिसीव किया, इस पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे अपनी आगे की स्लाइड में। नाउ कम टू दिस स्लाइड। अब कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ सन रेडिएशन एट द अर्थ इज 3.84 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे एरिया लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, टोटल जो एनर्जी मिल रही थी वो एनर्जी ले ली वॉट्स में, जो सन की वजह से मिल रही थी, दैट वॉट्स ऑफ एनर्जी।
जो योटा वॉट में निकाली थी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में जो हमने देखा था, वो 384 योटा वॉट था, जिसका रिजल्ट आया था 3.84 10⁻26। इतनी एनर्जी सन ने प्रोड्यूस करी। और वो एनर्जी को हमने डिवाइड किससे किया है, 4 पाई r स्क्वायर। और ये r क्या है, ये ऑर्बिट की रेडियस है। ऑर्बिट की जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने लिया 1.49 10⁻11। दिस इज द ऑर्बिट रेडियस। और उस रेडियस को का हमने एरिया निकाला 4 पाई स्क्वायर से, उसे डिवाइड किया। अब ऐसा करते क्यों है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जो सन ने एनर्जी बनाई, वो अर्थ तक पहुंची। अब हमने कहा, इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने एक खाली रूम में सेंटर में एक बल्ब रखा, और उसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, 100 स्टूडेंट्स को बोला कि आप एक सर्किल बना करके खड़े हो जाइए। और हमने कहा कि जिस सर्किल में वो खड़े हैं, उस सर्किल में सन जो जो बल्ब बीच में सेंटर में रखा हुआ है, जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वो हर एक के पास सेम इंटेंसिटी पहुंचेगी, क्योंकि डिस्टेंस सर्कुलर फॉर्म में खड़े हैं, तो रेडियस सेम होगी। तो कहीं पर भी जो इंटेंसिटी पहुंचेगी, हर स्टूडेंट के पास सेम इंटेंसिटी पहुंचेगी। अब वो इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कहता उसको हमने मेज़र करने के लिए क्या किया, एनर्जी को हमने कहा कि वाट पर मीटर स्क्वायर निकालेंगे। तो वाट जो टोटल एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा था, कंसीडरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बल्ब टू द स्टूडेंट, जो हमने क्लास में एग्जांपल लिया उसमें, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने एक उस ऑर्बिट का एरिया निकाला, और उस एरिया से डिवाइड कर दिया, और उससे हमें एक यूनिफॉर्मिटी मिली, एक पैरामीटर मिला वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमने वाट पर मीटर स्क्वायर में ही क्यों कैलकुलेट किया, उसका कारण है। जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको लेने का जो कारण है, वो अभी क्लियर हो जाएगा। बल्ब सेंटर में रखा हुआ है, 100 बच्चे हैं जो उस बल्ब को चारों ओर से घेरे हुए हैं, सर्कुलर पाथ में घेरे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि जो जिस स्टूडेंट की हाइट ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि वो ज़्यादा एनर्जी को रिसीव कर रहा होगा, क्योंकि उस स्टूडेंट का जो एरिया निकल करके आएगा, वो ज़्यादा होगा। जिस स्टूडेंट की हाइट कम है, उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, तो इसकी वजह से वो कम एनर्जी को रिसीव करेगा। तो इसलिए हमने एनर्जी को एक ऐसे पैरामीटर में लिया कि एनर्जी पर मीटर स्क्वायर, और उसके बाद हमने एरिया देखते गए हर स्टूडेंट का, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने कहा कि एनर्जी जो इन तक पहुंचती है वो तो ठीक है, हर एक के पास बराबर एनर्जी पहुंच रही है, लेकिन क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ये स्टूडेंट जो है वो उसकी हाइट अच्छी है, तो इसका टोटल एरिया जो निकल करके आता है, वो ज़्यादा निकल के आता है। इसलिए जब हम उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एनर्जी, एक स्टूडेंट अच्छी हाइट वाला स्टूडेंट ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, और कम हाइट वाला कम एनर्जी को रिसीव करेगा। तो इसलिए हमने एनर्जी को जो कैलकुलेट किया, वो वाट पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया। सन अर्थ के बीच में जो हमारे पास रेडियस थी, उस रेडियस को कंसीडर किया, उस रेडियस के रिस्पेक्ट में हमने एरिया निकाला 4 पाई r स्क्वायर को लेकर के, और सन की जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को हमने यहाँ वैल्यू को पुट किया, और कैलकुलेट करके रिजल्ट आता है हमारे पास 1377 वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया में जो एनर्जी मिलेगी, वो 1377 वाट पर मीटर स्क्वायर मिलेगी। इट मीन्स कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अपने घर की छत पे खड़े होकर खींचें, या अपने घर की बालकनी में खड़े होकर खींचें, तो आइडियली वहाँ पर जो एनर्जी आनी चाहिए सन की ओर से, वो 1377 वाट की एनर्जी आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1377 वाट की एनर्जी सन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर का तो पता चल गया। अब कहता है कि टोटल अर्थ ने कितनी एनर्जी रिसीव करी होगी, ज़रा वो देखते हैं। तो कहता है कि अब हमें अगर अर्थ की एनर्जी निकालनी है, कि एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अर्थ के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थ का एरिया कितना है, अर्थ की रेडियस अभी हमने देखी थी 6.3 इंटू 10⁻6, ये हमारे अर्थ की रेडियस थी। और जो जो यहाँ पे अर्थ का जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बन करके आ रहा है अर्थ का, उसके लिए अगर हम निकालेंगे एरिया, वो क्या हो जाएगा, πr² क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द अर्थ कंसीडरिंग द रेडियस ऑफ 6.37। बाई कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, द एरिया ऑफ अर्थ कम्स आउट एज 1.27 इंटू 10⁻14 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमारे सन के क्रॉस सेक्शन, सॉरी अर्थ के क्रॉस सेक्शन का है। अब टोटल एनर्जी, अगर हम यूनिट को यहाँ, अगर हम यहाँ पे यूनिट्स को देखें, तो यहाँ पे यूनिट से क्लियर है कि इस वाले टर्म की यूनिट कितनी है, वाट पर मीटर स्क्वायर। देखिए, वाट डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी है, कितनी एनर्जी होगी। और हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया, जो हमारे पास अर्थ की जो अर्थ का जो हमारे पास एरिया निकल कर के आया था मीटर स्क्वायर, अगर हम उस मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, केवल यूनिट को देखें,
तो दिस मीटर स्क्वायर विल बी कैंसल आउट विद दिस मीटर स्क्वायर एंड द फाइनल आंसर विल बी इन द वॉट्स। क्लियर? तो हमें अगर टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय द सन रिसीव्ड बाय द अर्थ कैलकुलेट करना है, तो हम 1377 को मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थ के क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि 1.27 इंटू 10⁻14 है। यहाँ देखिए हमने वही काम किया, 1.27 इंटू 10⁻14 मल्टीप्लाइड बाई 1377, और रिजल्ट कितना आता है 1.75 इंटू 10⁻17 वाट या फिर जूल पर सेकेंड। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो सन से जो एनर्जी निकली योटा वाट में, उस एनर्जी को अर्थ ने रिसीव किया, उसको टोटल एनर्जी कितनी थी हमने टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया, उसको वाट पर मीटर स्क्वायर निकाला और अर्थ के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें फाइनल रिजल्ट जो मिलता है, जो आपको दिमाग में होना चाहिए, वो क्या है कि 1.75 इंटू 10⁻17 वाट की एनर्जी हमें अर्थ है वो रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ सन, जिसकी यूनिट हो सकती है जूल पर सेकेंड। अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन बाय द अर्थ। अब ईच ईयर, ये तो कह रहा है कि तो पर सेकंड हो गई, जूल पर सेकंड लिखा हुआ है, तो पर सेकंड में इतनी एनर्जी मिलेगी। अगर हम एक ईयर की बात करें तो हमें मल्टीप्लाई करना, एक सेकंड में अगर एनर्जी मिलती है 1.75 इंटू 10⁻17, ये एनर्जी मिली हमको एक सेकंड में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जूल्स पर सेकंड, तो ये एनर्जी हमको मिली एक सेकंड में। एक मिनट में कितनी मिलेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। एक घंटे में कितनी मिलेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। उसके बाद एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितनी मिलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। एक साल में कितनी एनर्जी मिलेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। तो ये सारे फैक्टर जब कंसिडर करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक साल में जो एनर्जी हमें मिली, सन ने जो एनर्जी प्रोवाइड करी अर्थ को, वो एनर्जी हमें मिल गई 5.5 इंटू 10⁻24 जूल्स। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं फिर से बताता हूँ आपको, 1.75 इंटू 10⁻17 ये था आपके पास जूल पर सेकेंड, पर सेकंड में थी। इसको मिनट में किया तो 60 से मल्टीप्लाई किया, इसको आवर्स में करेंगे फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन के 24 घंटों के लिए लेंगे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साल के 365 डेज लेंगे तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ये जूल्स में रिजल्ट आता है 5.5 इंटू 10⁻24 जूल्स ऑफ एनर्जी द सन इज प्रोवाइडिंग टू द अर्थ। इसका मतलब एक साल में सन जो अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कितनी होती है, 5.5 10⁻24 जूल्स होती है। इतनी एनर्जी हमको मिल गई एक साल में, सन ने हमें प्रोवाइड करी। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हाँ, ह्यूमन काइंड को, हम लोगों को कितनी एनर्जी जो है वो हम लोगों को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो कहता है कि ह्यूमन काइंड को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 500 एक्सा जूल्स पर ईयर। ये कैलकुलेशंस किया गया है, साइंटिस्ट ने किया हुआ है, और ये लिटरेचर में अवेलेबल है कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में, आज की सिचुएशन में जितना भी ह्यूमन काइंड है ऑल ओवर द अर्थ, पूरा अर्थ में जितना भी मैन काइंड है, उसको जो एक साल में टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स, वो 500 एक्सा जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अर्थ जो रिसीव करता है एनर्जी, वो कितनी करता है, अर्थ से जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वो आ रही 5.5 मिलियन एक्सा जूल, मतलब 5.5 इंटू 10⁻16। एक्सा का मतलब क्या हो गया, एक्सा का मतलब हो गया 10⁻6, सॉरी 10⁻18। एक्सा मीन्स 10⁻18। तो 500 गुणे 10 की घात 8, 500 मल्टीप्लाइज बाई 10⁻8, इतना हमें एनर्जी एक साल में चाहिए सारे इंसान को, और 5.5 मिलियन एक्सा जूल एनर्जी जो है वो हमको मिल रही है, किससे मिल रही है, सन से मिल रही है, अर्थ को। तो कहता है कि अगर हम इसको कंपेयर करें, इफ़ वी कंपेयर दीज टू पार्ट, की टोटल एनर्जी जो सन ने हमको प्रोवाइड करी और जो हमें चाहिए एक साल में, तो हमें वो कहता है कि अगर 500 एक्सा जूल इज़ डिवाइडेड बाई 5.5 10⁻6 और कैलकुलेट करें, तो हमें रिजल्ट फाइनल निकल करके आता है कि 0.79 ईयर्स में, सिंपली हमने कुछ नहीं किया, डिवाइड किया 500 को 5.5 से। सिंपली सबको पता है कि हमें चाहिए है 500 एक्सा जूल चाहिए एक साल में, और हमें जो मिल रही है अवेलेबल कितनी मिल रही है, वो 5.5 मिलियन। तो इसको जब हमने कंपेयर किया डिवाइड करके, तो रिजल्ट आता है 0.79 आवर्स। मतलब सन हमारी एक साल की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है,
सन उसको कितनी देर में पूरा कर देता है? 0.79 आवर्स में, मतलब उसको 1 पूरा घंटा भी नहीं चाहिए। हम एक अगर हम 0.8 आवर्स की बात करें, 0.8 आवर्स में जो सन हमको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, वो एनर्जी वो टोटल एनर्जी हमारे पूरे साल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा और कैलकुलेशन किया गया, कह रहा है कि अगर हम जो हमने अभी कंसीडर किया हुआ था एनर्जी जो मिल रही थी, उसका कुछ पार्ट जो है वो लॉस में जाता है। इफ कंसीडरिंग द 30% ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, जो सन से जो लाइट आती है, उस लाइट का 30% लाइट जो है वो वापस चला जाता है। टोटल लाइट का 30% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला आता है, कि जब सन से अर्थ से लाइट आई, बीच में आप क्लाउड्स मिले, वेदर है, डस्ट मिला, बहुत सारे लेयर्स मिली, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, तो उन सब में जो लाइट को है वो रिफ्लेक्शन मिलता आता है। तो वो रिफ्लेक्शन कितना होता है? 30%, और केवल टोटल का 70% हमें यहाँ पर मिल पा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया कि हमें 0.79 आवर्स चाहिए। अगर हम इस वाले फैक्टर को कंसिडर करें कि हमें 30% चला गया लॉस वाले पार्ट में, तो बचा कितना? 70%। तो 0.70 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना निकल कर के आएगा? टोटल 1 आवर। इट मीन्स कि अगर हम ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि सन से आने वाली लाइट का 30% वापस चला गया और 70% हमारे पास पहुंचा, तो उस कंडीशन में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कहता है कि 1 घंटे में जो सन हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वॉट एवर द एनर्जी सन सन इज प्रोवाइडिंग टू द अर्थ फॉर इन इन 1 आवर, दैट मच एनर्जी सफिशियंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। जो 1 घंटे में सन ने दे दिया वो अगले 1 साल के लिए हमारे लिए यूज़फुल है। तो इतना सन के पास पावर है, इतना सन के पास एनर्जी है, और इसलिए हम इस एनर्जी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। यही मैं आपको बताना चाहता था कि हम सोलर टेक्नोलॉजी पे क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंक्रीज़िंग नीड ऑफ द एनर्जी है, उसको फुलफ़िल करने के लिए जो हमारे पास सन सोर्स है, वो उसके पास एनर्जी मोर देन सफिशिएंट है, और वो ईज़िली हमारी टोटल नीड को फुलफ़िल कर सकता है। तो ये पार्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, सन और अर्थ के ट्रांजिशन वाला पार्ट। इसमें हमने बेसिक पार्ट को कवर किया कि सन का रेडियस कितना, अर्थ का रेडियस कितना, ऑर्बिट का रेडियस कितना, कितनी एनर्जी सन ने बनाई, कितनी अर्थ तक पहुंची, क्या कैलकुलेशंस थे, टोटल कितनी एनर्जी थी, कितनी ह्यूमन काइंड की नीड थी, और कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स सन हमें किस तरह से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, हमारी एनर्जी की नीड को फुलफिल कर सकता है। तो दिस पार्ट इज़ कवर्ड अप टू दिस स्लाइड। आगे हम देखेंगे कि हमारा किस तरह से सन की जो एनर्जी आ रही है किस किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम तक पहुंचती है, और वापस किस तरह से अर्थ में रिसीव हो जाती है। तो देन इट विल बी द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी सन ने प्रोड्यूस करी है वो जो अर्थ तक पहुँचती है तो कितने स्टेप्स में होकर के आती है, कितने पार्ट में वो एनर्जी का कितना टोटल कितना परसेंटेज हमें यहाँ तक मिलता है। जैसे कुछ देर पहले मैंने कैलकुलेशन में 30% डायरेक्टली ले लिया था, तो 30% फैक्ट फैक्ट जो पार्ट आता है वो किस तरह से आता है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, तो किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है। तो ये बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पार्ट की अपने कैलकुलेशन में या इंजीनियरिंग के पार्ट पे, लेकिन थोड़ा-सा इसको देखते हैं। तो 175 पीटावॉट एनर्जी सन ने प्रोड्यूस करी, ये हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। तो जो 175 पीटावॉट एनर्जी हमारे सन ने प्रोड्यूस करी, उस एनर्जी का 6% एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्टेड, दैट एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बैक बाय द एटमॉस्फियर। टोटल का 6% एटमॉस्फियर ने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, एंड 16% इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फियर। मतलब सन से अर्थ के बीच में आने के लिए जो हमें एटमॉस्फेयर मिलता है, उस एटमॉस्फेयर का जो इफ़ेक्ट आता है, उस इफ़ेक्ट को यहाँ पर कंसीडर किया गया है। और कहता है कि 6% एनर्जी एटमॉस्फेयर ने रिफ्लेक्ट कर दी वापस, और 16% एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। तो टोटल कितना हो गया? 16 + 6 22% एनर्जी जो है वो वापस चली गई। वो हमारे काम की नहीं है, बची हुई एनर्जी हमें अर्थ तक पहुँचेगी। Then, here it is clear that the 6% reflected back by the atmosphere, 16% absorbed by the atmosphere, then जो remaining हमारे पास एनर्जी मिला, उसका 20% इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स एंड 3% इज एब्जॉर्ब बाय द क्लाउड्स। जब हमें क्लाउड जो मिलता है, उसका 20 टोटल एनर्जी का 20% जो लाइट है, सनलाइट 20% क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और 3% क्लाउड्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिमेनिंग एनर्जी को आगे भेजते हैं। अगर आपने कभी एरोप्लेन में बैठे हो और कभी कुछ ऐसे, जब प्लेन काफ़ी हाइट पर होता है तो क्लाउड्स के ऊपर से जब पास होता है और सन भी प्रॉपर है उस टाइम पे,
और आप विंडो से अगर बाहर देखें तो आपको जो नॉर्मल हम सनलाइट को फ़ील करते हैं, वहाँ पे आपको सनलाइट ज़्यादा फ़ील होगी और काफ़ी देर तक अगर आप विंडो से बाहर देखने की कोशिश करें तो आप काफ़ी तो देर तक बाहर नहीं देख सकते क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। जो जो क्लाउड्स हैं, जिनके ऊपर अभी हमारा एरोप्लेन आ चुका होता है, उन क्लाउड से डायरेक्टली एनर्जी रिफ्लेक्ट हो करके हमारे ऑब्जेक्ट पे, हमारे प्लेन पे, हमारी विंडो तक पहुँचती है और इसकी वजह से वो हमें इतनी इंटेंस एनर्जी को हमारी आईज़ फेस नहीं कर पाती, तो हम तुरंत विंडो को क्लोज़ करते हैं। ये वही रीज़न होता है कि 20% ऑफ द एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बैक बाय द रिफ्लेक्टेड बैक बाय द क्लाउड्स, जैसा कि यहाँ मेंशन किया है मैंने। ये वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं। Now this slide shows that the 4% of the reflected by the surface 4% of the energy is reflected by the surface of the earth। जी, तो हमें पता ही है जो हमारे पास सनलाइट जो हम अवेलेबल है, जो अर्थ तक पहुंच करके जो सनलाइट आती है, वो कितना है, उसका भी 4% पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वापस चला जाता है। तो टोटल एनर्जी 6% एनर्जी, टोटल का 6% रिफ्लेक्ट बाय द एटमॉस्फेयर, 16% एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, 20% इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स, 3% इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द क्लाउड्स। जब जो हमारे पास पहुँचा यहाँ पे एनर्जी, उसका 4% जो है वो अर्थ ने रिफ्लेक्ट कर दिया और रिमेनिंग पार्ट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा। हियर इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट द 51% अगर इन सारे पार्ट को हम काउंट करें, 6 + 16 22, 22 + 20 42, 42 + 3 45, 45 और 4 कितना 49। टोटल एनर्जी का 49% एनर्जी जो है वो या तो रिफ्लेक्ट हो गया या फिर एटमॉस्फेयर ने अब्जॉर्ब कर दिया और रिमेनिंग एनर्जी कितना हो जाए, 100 - 49, 51%। तो 51% पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज एब्जॉर्ब बाय द लैंड एंड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के पास जब एनर्जी पहुंचेगी तो डेफिनेटली लैंड का पार्ट होगा या फिर वाटर का पार्ट होगा। तो लैंड या एटमॉस्फेयर ने जो एनर्जी को अब्जॉर्ब किया 51% है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि थोड़ी देर पहले जो मैंने कैलकुलेशन किया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि टोटल एनर्जी जो सन प्रोड्यूस करता है, उस जिसमें रिज़ल्ट ये निकल कर के आया था कि एक सन जो हमें 1 घंटे की एनर्जी देता है, उसको हम 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि हम 30% एनर्जी को हम ये मानते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो गई है और यहाँ पर जो रिज़ल्ट निकल कर के आ रहा है, वो आपको दिख रहा है कि केवल 50% एनर्जी जो है वो अर्थ तक पहुँची है और 49% जो है रिफ्लेक्ट हो गई है। तो पहले 30% बोला था, यहाँ पे मैं 49 बोल रहा हूँ। तो 31 और 49 में डिफ़रेंस किया था, या तो डेटा गलत है या तो मैं गलत बता रहा हूँ। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? तो कह रहा है कि यहाँ पर केवल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अगर आप देखें, 6% इज़ रिफ्लेक्टेड, ठीक है? यहाँ पे 20% इज़ रिफ्लेक्टेड, 4% इज़ रिफ्लेक्टेड। अगर आप इन सबको काउंट करें, 6, 20 और 4, तो 6 एंड 20, 26, 26 एंड 4 इट विल बिकम एज़ 30%, जिसको हमने यहाँ पे लिखा था, जिसको हमने कैलकुलेशन में यूज़ किया था। हमने किस पार्ट को कैलकुलेशन में छोड़ा था? वो जो 3% जो एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द क्लाउड्स, 3% एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर है, वो हमने छोड़ दिया था क्योंकि जो क्लाउड्स ने या फिर जो एटमॉस्फेयर ने जो एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, वो कहीं न कहीं हमारे अर्थ के पार्ट पर हीट प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हमने ये देखा था कि हमें कितनी एनर्जी सन से मिलती है, जब हम वहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे, तो डायरेक्टली जो हमारे पास एनर्जी पहुँच कर के आ रही थी, 51% जो कि यहाँ पर है, और जो एब्ज़ॉर्ब कर ली गई है, जो क्लाउड वाले पार्ट ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है क्लाउड के पार्ट पर, जो एटमॉस्फेयर ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के पार्ट पर। तो हमने इन दोनों पार्ट को कंसीडर नहीं किया था। 16 + 3 इट विल बिकम एज़ 19, 19 + 51 विल बिकम एज़ 70। तो टोटल का 70% एनर्जी हमारे पास कहीं न कहीं अवेलेबल होता है। 30% जो है जो रिफ्लेक्ट बैक होता है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द क्लाउड्स एंड ड्यू टू द अर्थ। इसलिए हमने वहाँ पे कैलकुलेशन में 30% कंसीडर किया था। देन इसके बाद अगर हम देखें तो 51% इज़ अब्ज़ॉर्ब्ड बाय द लैंड एंड एटमॉस्फियर। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ये पार्ट हमने कवर किया। अब कहता है कि 45% जो एनर्जी है उसका कहाँ यूज़ किया रहा है? 45% रेज़िंग द एयर, क्लाउड फॉर्मेशन, यहाँ पर है क्लाउड फॉर्मेशन, रेडिएशन अब्ज़ॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फियर। अब कहता है जो 51% एनर्जी जो अर्थ ने जो अब्ज़ॉर्ब कर ली लैंड और वाटर के पार्ट पे, उसका क्या यूज़ होगा? उसका यूज़ ये होगा कि 40 उसकी जो 45% एनर्जी है, वो कहाँ जाएगी? वो राइज़िंग एयर को रेज़ करने में यूज़ होगी। गर्म हवा होती है, गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, हीट की वज़ह से जब जब एयर
जब हीट हो जाएगा तो वो एयर क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, और गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी हवा उसका स्पेस लेगी नीचे में। आंधी इसीलिए आती है, जब बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं तो आप देखते हैं आंधी आती है। आंधी क्यों आती है? जब बहुत हीट है, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, तो हीट बहुत है, उस हीट की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है, वो एयर जो है वो हॉट एयर हो गया। और हॉट एयर की प्रॉपर्टी है कि वो ऊपर की ओर, वो नॉर्मल एयर से हॉट एयर नॉर्मल टेम्परेचर से हल्की होती है, तो उसकी वजह से वो ऊपर की ओर उड़ती है। तो एटमॉस्फेयर में वो ऊपर की ओर जाएगी और नीचे की ओर एक गैप बनेगा, उस गैप को फिल करने के लिए तेज़ी से हवा चलती है, उस हवा को हम क्या नाम देते हैं? आंधी का नाम देते हैं। जो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसके बाद एक ज़ोर से आंधी आती है, उसका रीज़न यही होता है कि हॉट एयर जो है वो एटमॉस्फेयर की हीट की वजह से एयर हॉट हो जाती है। वही वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 50% जो पार्ट है, उसका 45% जो है वो दैट इज़ यूज़्ड फॉर द राइज़िंग द एयर फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन। डेफ़िनेटली क्लाउड फॉर्मेशन भी इसी से होता है, और रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। देन यहाँ पे शो किया गया है कि जितना पे यहाँ पे पार्ट मिला, उसके बाद यहाँ पर 64% रेडिएटेड टू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाउड्स। अब अगर आप देखें, यहाँ से जो पार्ट मिला था, जो कि एटमॉस्फेयर ने 16% यहाँ पर क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था। क्लाउड्स ने यहाँ पर कितना एब्जॉर्ब किया था? 3% पार्ट को क्लाउड्स ने क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था। 45% वाला पार्ट हमने यहाँ पर कंसीडर किया, जो कि वापस की ओर वापस जा रहा है। अर्थ के पास 51% पहुँचा, उसका जो 45% है, जो कि रिफ्लेक्ट होकर किसी ना किसी फॉर्म में, क्लाउड या एयर किसी फॉर्म में वापस जा रहा है। अगर हम इन सारे के सारे टर्म्स को ऐड करें, 16 + 3 इट विल बी 19, एंड 19 + 45 देन इट विल बिकम एज द 64%। तो ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पार्ट पे कलेक्ट होकर के वापस क्या हो गया? इट इज़ रेडिएटेड टू द स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाउड्स। देन अब आप बोलोगे कि सर 64% का डेटा आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, कैलकुलेट करके बता दिया, 45% यहाँ पर था। अब टोटल 45% को आपने यहाँ पर ऐड किया, 3 के साथ ऐड किया, एक बार 16 के साथ ऐड किया, 64% यहाँ पे आ गया, बात ठीक है। लेकिन 51% का केवल 45% ही यहाँ पे इस पार्ट में यूज़ हो रहा था। तो रिमेनिंग 6% कहाँ जाएगा? 51% का 45 उधर गया, एंड व्हाट अबाउट द 6%? तो 6% के बारे में बताता है दैट 6% रेडिएटेड एनर्जी, 6% रेडिएटेड डायरेक्टली बाय द अर्थ टू द स्पेस। 6% एनर्जी ऐसी होती है जो डायरेक्टली सन अर्थ जो है वो अर्थ जो स्पेस को रेडिएट बैक कर देता है। इस तरह से ये पूरी कंप्लीट एक एनर्जी साइकिल है, या कह सकते हैं जो हमें सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, 175 पेटावाट एनर्जी मिलती टोटल, वो कितने कितने स्टेप्स में एब्जॉर्ब हुई, कितने कहीं पर कहाँ पर वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, कितनी अर्थ के पास पहुँची, अर्थ ने कितना डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक किया, कितना अर्थ ने किस फॉर्म में यूज़ किया, ऐसे करके एक कंप्लीट साइकिल हमें मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज़ द डे टाइम, दिस इज़ द पार्ट ऑफ डे टाइम, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द नाइट टाइम। यहाँ पर क्या जाएगा? ये नाइट के लिए। तो NIGHT आप कंप्लीट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और अगर कहीं कैलकुलेशन की बात आती है, तो जितना हम ओरिजिन में हमने जितना 175 पीटावाट लिया हुआ है, वैल्यू पुट कर करके इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट साइकिल अबाउट द एनर्जी विच वी आर टेक विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन, एंड इट इज रिसीव्ड टू द अर्थ एटमॉस्फेयर एज वेल एज अर्थ लैंड एंड वाटर, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर। बट दिस इज द कंप्लीट साइकिल। Solar energy. We know that energy is the ability of an object to do some sort of work. Energy exists in different forms like kinetic energy and potential energy, which we have already discussed in our previous lectures. Now let me teach you about solar energy. As the word solar means the sun, hence solar energy means the energy of the sun. Each and every day, the earth receives huge amount of energy directly from the sun. Using special scientific methods, we can utilize this solar energy. I mean that we can convert solar energy into other useful forms of energy. For example, we can convert solar energy into electrical energy, and then we can convert electrical energy into heat energy, kinetic energy,
potential energy, etc. Hence, solar energy is the chief source of energy, which can be easily converted into other useful forms of energy. Do you know that how solar energy reaches the earth and how much solar energy reaches the earth? As we know that light travels in the form of waves. Solar energy reaches the earth in the form of sunlight. 1 meter square area of the atmosphere receives 1.4 kilowatt energy, which is also known as a solar constant. It means the solar energy absorption of our atmosphere is 1.4 kilowatt per meter square at outer side. Now passing through the atmosphere, the total solar energy is reduced due to following reason. As we know that atmosphere is collection of different gases. Hence the solar energy is absorbed by the gas particles, water vapors, dust particles, and reflection. On a clear day at noon, the intensity of solar energy reaching the earth is about 1 kilowatt per meter square. Hence this energy can be converted or used to heat water or produce electrical energy. For example, we can convert solar energy into electrical energy through the use of semiconductor devices like silicon, and these are called solar cells. Solar cells are also known as a photovoltaic cells. Solar cells are made up of silicon. Electrons and the silicon gain energy from the sunlight to create a voltage. A single voltaic or solar cell produces a very small amount of voltage. In order to get sufficient high voltage for practical use, a large number of such solar cells are connected in series, forming a solar panel. For cloudy days or nights, electric energy can be stored during the sunlight and nickel-cadmium batteries by connecting them to solar panels. These batteries can then provide power to electrical appliances at night or on cloudy days. Although solar cells are expensive, but it lasts for a long time and have low running cost. At last, let me teach you some applications of solar energy. Solar cells are used to power satellites having large solar panels which are kept facing the sun. Solar watches and solar calculators are also in use nowadays. Solar energy is used in industrial zones for power generations. Solar energy provides electrical energy to tube wells. Nowadays, different developed countries have introduced cars that are completely running on solar energy. Remember that solar energy is renewable energy, which we can use again and again. Solar energy is environment-friendly source of energy. It means solar energy doesn't pollute our environment because it doesn't produce pollutant gas like carbon dioxide, sulfur dioxide, etc. To summarize my lecture, we learned that solar energy is the energy of the sun which we can use in different ways for long period of time without environmental hazards. That is why developed countries like China has invested $1 billion in renewable sources of energy. नाउ दिस इज द टुडेज असाइनमेंट। आज हमने जो पार्ट कवर किया, आज थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बोर लगा हो, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। मैंने अपने पार्ट पे इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी थी कि हाँ, कितनी एनर्जी सन के पास है और कितना ह्यूमन काइंड की नीड है और कितना हम उसको किस साइकिल में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बेसिस पे हम छोटा सा एक असाइनमेंट मैंने आपके लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सोलर एनर्जी इज कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। सोलर एनर्जी का अपने कंट्री इंडिया के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सोलर का कितना पार्ट है, मतलब जो आज के से प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो को आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, सर्च आउट करना पड़ेगा।
और कितना डेवलपमेंट में कहाँ-कहाँ यूज़ कर रहे हैं नए टेक्नोलॉजीज़ के पार्ट पे, वहाँ से आपको निकल के आएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि आप सबके आंसर एक जैसे ही होंगे, एक्यूरेट होंगे, और इसमें इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारा वेरिएशन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको लिखिए और लिख करके सबमिट करिए। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन? ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली है। आप जैसे ही लिखेंगे गूगल पे जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, आपको पूरा मिल जाएगा। 3 फेज़ में चल रहा है, तीनों फेज़ के बारे में ब्रीफ में लिखना है आपको। और एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हिच स्टेट ऑफ द इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट सोलर पावर? प्रेजेंट सिनेरियो में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि हाईएस्ट सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। और इन क्वेश्चंस को बहुत ही लेंदी करके नहीं लिखना है, आपको ब्रीफ में लिखना है किस तरह से एनर्जी। फर्स्ट पार्ट जो है आपने उसको हाफ पेज में कवर किया, सेकंड पार्ट है उसको आपने कुछ लाइंस में, थर्ड वाले पार्ट को आपने केवल एक आंसर लिख कर कंप्लीट किया। तो आपने सिंपल एक पेज में इसे कर लिया। अगर आप थोड़ा अच्छा और भी आपको मिलता है कंटेंट, तो आप उसको 2 पेज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रिसाइज होकर के लिखिए, काम की चीज़ें लिखिए और उसका स्नैपशॉट लेकर के मूडल पे अपलोड कर दीजिए। मूडल पे आप लोग ऐड हो गए हैं, और मेरे मूडल पेज पे मैं असाइनमेंट को ओपन कर दिया है मैंने, और आप कल की क्लास के पहले तक इस एक पेज को सबमिट करेंगे। और जिस पेज को आप क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करेंगे, उसके ऊपर अपना नेम और मॉड्यूल का नाम, आपका रोल नंबर प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। मॉड्यूल नेम लिखा होना, समर इंटर्नशिप मॉड्यूल, मॉड्यूल का पूरा नेम आप लिखेंगे, आपका नाम और रोल नंबर क्लियरली लिखेंगे। फिर आप इस पार्ट को क्लिक करके उस छोटी सी पीडीएफ को वहाँ पर सबमिट कर देंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल कल की जो क्लास के कल की क्लास बिल्कुल हम टेक्निकल पे मूव कर जाएंगे। कल हम लोड कैलकुलेशन के पार्ट पे आएंगे। तो कल आपको पेन पेंसिल लेकर के ही बैठना पड़ सकता है, कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, और उसके बेसिस पे हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। तो कल की के लिए एकदम बी वेरी श्योर, फ्रॉम टुमारो क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। सोलर पैनल्स क्या होते हैं, फोटोवोल्टाइक, और किस तरह से उनका कैलकुलेशन किया जाता है, डायरेक्टली हम उस पार्ट पे आ जाएंगे। तो वाली क्लास डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, thank you so much. We will meet tomorrow again.